Respected Chief Guest, Nitin Gadkari sir, Joint Secretary Food, Mr. Ashwini Srivastav sir, Chaudhary Saab, Member of Parliament sir, Ranjit Puri Saab, or Tarun Sani Saab. Our dear delegates, their family members, exhibitors, and people from media, we welcome you all on our esteemed 100th year of celebration of Sugar Technologies Association of India's journey. And we are truly overwhelmed to see the dignitaries on dais and off the dais, and our old members, past presidents, exhibitors who have been always with us in this journey of 100 years. We always hear Gadkari Saab, who always say that industry has to create more revenue stream. The sugar is not the only thing. Ethanol is not only thing. We have to think of bioplastic. We have to think of biorefinery. We have to have CNG from press mud. We have to have second generation ethanol, sustainable aviation fuel, green hydrogen. So industry is now moved far from, only producing sugar, although still it's called sugar industry. But I'm very proud to say that most of the industry and so many owners have graduated to, biocomplex, biorefinery rather than only a sugar mill, bare sugar mill. So this is a great moment that in this whole 100 years journey, we were the, science and technology platform from where we kept on promoting through our R&D activities the most of the researches which slowly has got implemented into the our sugar industry. I also welcome all the, winners who are getting awards, our friends who have completed 75 years and old members of association, our past presidents, our supporters, and our delegates and, fellow members. We welcoming all, and I request you to take your time, be interactive. We have 2.5 days of this conference. Today we have Expo inauguration, where more than 110 exhibitors are, exhibiting their talent, what they have done in the industry, what is their contribution in the industry, and undoubtedly, without their contribution to the industry, it could have not reached to this level. I want you to applaud them for their contribution. Beside this, that technocrats who have done, they all are here and produce, they are presenting, I think, around 74 papers in all sections. What research work they have done whole year in their industry, they are, presenting here. So be interactive, try to gain out of that something, take home some learning and try to implement in your factory. We, tomorrow and day after tomorrow, in 2 days, we are having more than 1,500 delegates who are going to attend agriculture, science, byproduct, factory engineering, and processing, all sections. We are few papers and some discussions in plenary sessions about artificial intelligence and the new technologies which are happening in the industry. So I'm pretty sure you will be greatly benefited out of whatever we are going to discuss here in next 2 days. And today it's a great moment that we have Sir with us. So we will also listen visionary thoughts of Gadkari sir also. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your deep insight to the sugar industry. Next, I would like to call upon Shri Ranjit Puri ji, Chairman, ISJIC Heavy Engineering Limited and Saraswati Sugar Mill, for his welcome address to this esteemed audience. Sir, may I please request you to join us on the podium? This is not fair. I was told I was to speak tomorrow,
and now they've stood me up and I'm not prepared. Well, let me just say that I joined STA 62 years ago. Very happy to be here for this 100th centenary celebration. I'm not quite the oldest living member. There are several senior to me. Today, I would just like to wish everybody a successful convention and to wish that the excellent work that this association has done to further the sugar industry will continue, and that the next 100 years will be even better than these. Thank you. Thank you, sir, for those encouraging words. Now we move on to our awards. As we celebrate the 83rd Annual Conference of the Sugar Technologists Association of India, we pause to reflect on the legacy that has shaped this institution into what it is today. Every milestone achieved by STAI over the past decades stands on the foundation laid by these visionary leaders, our past presidents, who have steered this association with wisdom, dedication, and foresight. It is our privilege this evening to felicitate and honor the stalwarts who have led STAI in the past and whose contributions continue to inspire generations of sugar professionals. May I now request our chief guest, Mr. Nitin Gadkari ji, and our incumbent president, Mr. Sanjay Awasthi, and other dignitaries to kindly step forward to facilitate our past presidents. And now, with deep respect and admiration, I invite our esteemed past presidents to receive the honor as a token of appreciation from the association as we recognize their enduring legacy. The first award goes to Shri Ranjit Puri ji, Honorable CMD, ISJIC Heavy Engineering Private Limited, who has served the association as its president from 1980. Sir, your continued support and leadership have been a guiding light for this industry. Ladies and gentlemen, he really deserves a huge round of applause. Next, I would like to call upon Mr. D.M. Sahani, Chairman, Triveni Engineering Limited. He served the association as president from 1981 to 1991, a visionary under whose leadership STAI evolved. Since Sir couldn't join us today, so may we request Mr. Tarun Sahani, Vice Chairman and Managing Director, Triveni Engineering Industries, to receive the award on his behalf. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Mr. Tarun Sahani. Next, I would request Mr. Vijay Kumar Goyal, Chairman, Dhampur Bioorganics Limited, who served the association as its president from 1996 to 1999. Since Sir couldn't join us due to his prior engagements, I would request Dr. Mohan Dongre to come forward and collect the award on his behalf. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Dr. Mohan Dongre. Next, I would request Mr. M. Manikam, CMD Shakti Sugars, who served the association president from 1999 to 2002. I would request Mr. Perumal, VP Marketing Shakti Group, to come forward on his behalf and collect the award. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Mr. Perumal. Next, I would like to call upon Mr. Manhar Lal M. Patel, served STI President for the period of 2002 to 2004. Since Sir couldn't join us today, hence we would request Mr. Parimal Patel to please come forward and collect award on his behalf.
Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Mr. Parimal. Next, I would like to call upon Mr. J.J. Bhagat, MD, STM Projects Limited, who's been the president of the association for a term of from 2006 to 2009. Your contribution to the industry and STAI are truly commendable, sir. We're honored to have you here with us. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Mr. J.J. Bhagat. Next, I would like to call upon Dr. G.S.C. Rao, MD, Global Cane Sugar, who served STAI as a president from 2009 to 2015. Your contributions to the industry and STAI are truly commendable. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Dr. G.S.C. Rao. Last but not the least, the serving president of STAI and also the longest. We are honored and truly privileged to be led by him, Mr. Sanjay Awasthi, a true visionary, a true leader whose distinguished expertise continues to guide the association in its mission to promote technical excellence in the sugar industry. Sir, you represent a pillar of strength and knowledge in our field. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for Mr. Sanjay Awasthi. I would request all our dignitaries to please get seated. Thank you so much, sir. I would now request our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji, to please come and address this august gathering. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause. आदरणीय रंजीत पुरी जी, संजय अवस्थी जी, तरुण साहनी जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी लुमाराम जी, हमारे शुगर डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय अश्विनी श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि पिछले अनेक सालों में इंडस्ट्री में काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी उपलब्ध की है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और इसलिए शुगर इंडस्ट्री में जो रिसर्च हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई गुना ज़्यादा आगे रिसर्च करने की इस इंडस्ट्री को आवश्यकता है। हमारे इंडस्ट्री के 3 इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें फार्मर्स इसका सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, क्योंकि हम सब ये इंडस्ट्री जो चला रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनको किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं और रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल हमारे एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रोथ कैसी बढ़ा सकते हैं, हमारी सबकी प्रायोरिटी है। इसके ऊपर बहुत बड़े प्रमाण पर प्रयास हुए हैं, पर आज हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 52 to 54% ये सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। इस 12% को अगर 24% पे ले जाएंगे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर और किसान का
बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर बैकबोन कोई है कि जो मेजॉरिटी बड़े प्रमाण पर किसान जो गन्ने की खेती करती है उनका जो बेनिफिट मिलता है, उसके आधार पर इसका भविष्य उनका इसके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड सेक्टर जो है इंडस्ट्री का है, उसमें तो आप सब लोग अनुभव करते हो, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो कुछ गलतियाँ की है उसमें से एक ये इंडस्ट्री है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो शुगर इंडस्ट्री डालता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। अभी मैं 15 साल से 20 से 40 करोड़ साल का घाटा सहन करता हूँ, क्योंकि मैं एक एडवर्स पोजीशन में काम करता हूँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र में और यूपी में जैसे गन्ने की स्थिति है वैसे विदर्भ में नहीं है, और 3 शुगर इंडस्ट्री चलाता हूँ। अब मैं बाहर भी निकल नहीं सकता और अंदर भी रह नहीं सकता, ऐसे विचित्र अवस्था में हूँ। पर बाकी सब प्रोजेक्ट करा कुरा के बैंक का कर्जा चुकाने का काम करते हुए आया हूँ। इसलिए मैं और भारत सरकार का प्रतिनिधि हूँ, ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसके स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वे भी इम्पोर्टेंट है, और कितना भी रहता है तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें अर्बन सोसाइटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्फ्लेशन, इन सब बातों की चर्चा भी होती है। इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स मेरे लिए न करना उचित है, क्योंकि मैं आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड फार्मर, इन तीनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके इंडस्ट्री को सर्वाइव करना, ये आप सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसलिए इसमें प्रायोरिटी फार्मर्स की भी इम्पोर्टेंट है और कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारे देश में हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित है कि अब एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइस तय करना हमारे हाथ से निकल गया है। कॉर्न की प्राइस अमेरिका तय करता है, सोयाबीन की प्राइस अर्जेंटीना तैयार करता है, पाम ऑयल की प्राइस मलेशिया तय करता है, और शुगर की प्राइस ब्राज़ील तय करता है। योगायोग से मुझे ब्रिक नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए अभी 1-2 महीने पहले ब्राज़ील में जाने का मौका मिला, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि ब्राज़ील में कितने प्रमाण पे गन्ने को डाइवर्सिफाई होगा, उसमें भारत का कल्याण होगा, ये मन में मैं सोच रहा था। वहाँ उन्होंने एडिबल ऑयल के ऊपर सोयाबीन से वो डीजल भी बना रहे हैं। एक अच्छी बात मुझे ध्यान में आई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू इंटरेक्ट विद द ब्राज़ीलियन शुगर केन इंडस्ट्री एसोसिएशन यूनिका, और उनके साथ ही मैं सेंटर ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी CTC वहाँ विज़िट करने का मौका मुझे मिला। द इनोवेटिव इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन शुगर केन ब्रीडिंग, cultivation and production have been tremendous in Brazil. The CTC's breeding program has enabled the production of high-yielding sugarcane varieties with improved sugar content reaching up to 14%. Use of genetic modification and innovation have enabled Brazilian sugarcane farmers to increase their yields, productivity and competitiveness in the global market. ये जो 14% शुगर का परसेंटेज हुआ है, उसके बाद मैंने पवार साहब को एक पत्र लिखा और मैंने उनसे भी बात की थी कि उनसे हमारे वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट कोई जॉइंट वेंचर करें, ताकि ये 14% जाने से हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी. Anywhere in any industry, the 4 important things which are very important. One is proven technology, economic viability, availability of raw material, and marketability of the finished product.
इसमें एक सब्जेक्ट है जो मैं आपके विचारार्थ रखना चाहता हूँ और जिसमें मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें, और वो सब्जेक्ट है AI इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। अभी मैं लगभग किसानों में काम करता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर योगा से मुझे 13 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है। उसमें से 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, वाटर कंजर्वेशन में। और मैं टनल और ब्रिजेस और रोड में ज़्यादा काम करता हूँ, पर मैं 80% खेती में काम करता हूँ, क्योंकि मैं जिस एरिया से आया हूँ वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। तो आई जस्ट एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज, और मैं उसमें लगातार कंस्ट्रक्टिव रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले ब्राज़ील गया था, स्पेन गया था, और स्पेन में जाने के बाद मैं हमारे यहाँ के ऑरेंज ग्रोअर्स 50 किसानों को लेके गया था। तो मुझे एक ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़े प्रमाण पे बदल रही है। हमारे यहाँ नागपुर ऑरेंजेस बहुत फेमस है। हमारे 1 एकड़ में 100 पेड़ लगते हैं, और वही स्पेन में 1 एकड़ में 340 लगते हैं। उनका जो टोटल टेक्नोलॉजी का पूरा करके मेरे साथ मैं उसका शूटिंग भी करा है पूरा, जहाँ हम गए थे, पैकेजिंग से लेकर ऑरेंज के जो जितने बड़े बड़े जगह खेत थे वहाँ भी हम गए थे। और आने के बाद एक ध्यान में आया कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में 3 टन प्रोडक्शन होता है, और स्पेन में 25 टन होता है। आजकल ये किनो जो है राजस्थान और पंजाब में लगता है, इसके लिए भी वो उपयोगी है। और आने के बाद फिर मैंने तय किया कि हम एक कार्यक्रम, वैसे किसानों में काफ़ी कार्यक्रम करते रहता हूँ, पर अब मेरी मानसिकता बदली कि फुकट में नहीं कुछ करना है, क्योंकि फुकट में दिए हुए ज्ञान को कोई महत्व नहीं होता। तो मैंने कहा इसको 250 रुपये टिकट लगाओ, और इसराइल के ऑरेंजेस और स्पेन के ऑरेंजेस के ऊपर हमने 250 रुपये टिकट लगाकर 650 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 4.5 घंटे एक टाशनी भी गिरी तो आवाज़ आएगा, ऐसे सब लोगों ने शांति से सुना। एक बड़ा ऐसा स्क्रीन था। तो मुझे ध्यान में आया कि जो लोग पैसे देकर आते हो ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जब लोग आते हैं तो खाना होता है, फिर गाड़ी मिलती है, तो आते बेचारे अपने मूड में रहते हैं, कोई भाषण सुनता है, कोई चले जाता है, कोई बच्चा चिल्लाते रहता है, तो ये वहाँ चलता ही है। पर मैं जब महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में था, तो मैंने कहा था कि मैं एक ही कंडीशन पे आऊँगा। आवाड़े साहब के भी गांव गया था मैं, तो मैंने कहा था एक काम करना, ये बसेस ट्रक नहीं लगाना, और किसी को कोई खिलाना नहीं। आते तो आए, नहीं आते तो नहीं आते। मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो मैंने लोगों को बता दिया कि मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, बैनर भी नहीं लगाऊंगा, और तुमको चाय भी नहीं पिलाऊंगा। तुमको ज़रूरी होगा तो मुझे वोट दो, नहीं देना तो मत दो, ये तुम्हारा अधिकार है। पर मेरे एजेंडा से मेरी राजनीति चलेगी। और मैं बड़ा अनुभव अच्छा रहा, मैं चुनाव जीत गया। और जात पात की कोई बात करेगा तो मतलब कस के मारूंगा लात, आना नहीं मेरे पास। मेरे एजेंडा पे मैं चलूँगा, मैं आपके लिए काम करूँगा, जो वोट देगा उसका भी करूँगा, नहीं देगा उसका भी करूँगा। बड़ा अनुभव अच्छा रहा। तो पहली बात मुझे यह ध्यान में आया कि किसान कुछ पढ़ना चाहता है, टेक्नोलॉजी को स्वीकारना चाहता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर है, इसमें बारामती कृषि विज्ञान केंद्र ने, पवार साहब है, उनके भाई है, उनके भाई के लड़के हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। ये क्या है कि एक्चुअली ये आपने इस थीम को भी ज़रूर लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारा शुगर कैन प्रोडक्शन मेरे यहाँ 88 टन हुआ है, और हमारे यहाँ जब एडवर्स सिचुएशन में भी 110 तक भी गए हुए 10-12 लोग 100 से 110 टन तक एकड़ में आए हैं। कोल्हापुर में और उस एरिया में ज़रा ज़्यादा अच्छी स्थिति है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा अच्छी है। पर ये जो AI के आधार पर वो कहते हैं कि हम अब 200 टन एकड़ में जाएंगे। अब ये जो 200 टन पर एकड़ में जो AI का है, ये करने से इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी। तो जो हमने उनको भी बुलाया था, और पहले हमारे जो एग्रो विजन के थिंक टैंक में उनका
रात को 3-4 घंटे डिस्कशन हुआ, फिर हमने टिकट लगाकर फिर 250 लोग थे वो, और अभी मैं 2,500 लोगों के लिए 2 प्रोग्राम करने वाला हूँ 200 रुपये टिकट लगाकर, फुकट में नहीं। तो इसमें हमारे अभी कल परसों बारामती में हमारे 60 किसान गए थे, और जो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा, मुझे भी देखना था, मैं जा नहीं पाया, पर मैं आपको बताऊंगा कि जब तक किसान की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, शुगर केन में शुगर परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये इंडस्ट्री भी आगे नहीं जा सकती, कि इसका बैकबोन सबसे पहले किसान है। तो जो डेटा आधारित जो खेती है, इसके ऊपर आप लोगों ने भी विशेष रिसर्च और ध्यान देना चाहिए, मैं से अनुरोध करूँगा। सेंसर, ड्रोन और सैटेलाइट, इसे जो रियल टाइम में मिट्टी, बारिश और फसल, इसकी AI जानकारी देता है। मैं हमारे यहाँ जो स्प्रेस मड और स्पेंट वॉश होता है, उसका हम एक खाद तैयार करते हैं। मेरे यहाँ भी काफ़ी इतना अच्छे रिजल्ट्स आए कि मेरी पत्नी खेती देखती है, वो MSc है, तो मुझे तुअर की खेती में 15 क्विंटल 1 एकड़ में हुआ, कम से कम 5-6 एकड़ था, तो 15 क्विंटल का एवरेज मिला। तो मेरे गांव में दाल मिला। मैंने ये तय किया है कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो बोलता हूँ लोग अनुकरण करते हैं, तो मुझे अब सताने लगा है कि मैं कोई बोलूँ गलत चीज़ और लोग फंस जाएंगे तो मेरे को ब्लेम करेंगे, तो मैं हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट करता हूँ। विदाउट डैट मैं कहने के मूड में नहीं हूँ। तो मैंने पहले ये प्रयोग किया, और मैंने अपने यहाँ खुद अपनी ऑर्गेनिक दाल बनाई, रेसिडो फ्री था पूरा, और उसका ब्रांडिंग किया, और 160 रुपये kg के भाव से दाल सुपर बाजार हमारे कोऑपरेटिव में थे, वहाँ बेचना शुरू किया। तो मैंने अभी 9 लाख रुपए की दाल बेच दी। तो मैं अब किसानों को इकट्ठा करके, मेरे पास ड्रोन भी है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी है, और मैंने ये तय किया कि मेरे गांव के 2, 3, 5 एकड़ के मैंने ऐसे 10 किसानों को पहले फेज में इकट्ठा किया, और मैंने कहा मैं आपकी खेती करके आपका इनकम डबल करा दूंगा। मैं ये प्रोफेशन से ज़्यादा मैं सोशल इंटरेस्ट में करता हूँ। तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर है, इसमें AI तय करता है कि अब कब और कितना पानी देना है। 30 to 45% पानी की बचत है, और सटीक खाद और दवाई की सलाह मिलती है। 8 दिन पहले मिलता है कि भाई कौन सा डिसीज़ आने वाला है, कौन सा कमी है। तो पत्ती का भी परीक्षण, पानी का भी परीक्षण और ज़मीन का भी परीक्षण, ये तीनों के आधार पर ये रीडिंग मिल जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि कौन से खाद की ज़रूरत है ये भी पता चलता है। तो और दवाई में भी बचत होती है। तो 35% इससे अधिक उत्पादन मिला है। तो इसका प्रयोग अभी पुणे जिले में हुआ है। जयंतराव पाटिल जी को भी वहाँ ज़्यादा जानकारी होंगी। इसमें वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, कोई बीमारी आने वाली है तो 8 दिन पहले पता चलता है। तो AI से बीमारी और पोषक तत्व की जो कमी हो जल्दी पकड़ जाती है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मोबाइल पर ये जो बारामती कृषि विज्ञान केंद्र, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ उनका जॉइंट वेंचर है, और अमेरिकन सैटेलाइट से ये पूरा उपयोग होता है, और इसके कारण तुरंत आपको सब जानकारियाँ मिल जाती है। तो ये मोबाइल पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट से फसल के जैसे प्लेटफॉर्म पर तुरंत सुझाव देते हैं, और जैसे अपने शरीर में हम लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट लेते हैं, प्रोटीन्स कम है क्या वो देखते हैं, फिर एडिशनल प्रोटीन लेते हैं, वही टेक्नोलॉजी क्रॉप के लिए है। और इसमें जो AI है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पानी, खाद और ऊर्जा की बचत, मिट्टी की सेहत सुधरेगी, और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी, गन्ने की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ेगी, और रिकवरी जो शुगर की है वो ऐसा बताते हैं कि 0.2% से लेकर 2% तक ये बढ़ेगी। और एवरेज मैं कन्विंस हो गया कि 150 टन 1 एकड़ में, यानी आपके हिसाब से यहाँ क्विंटल में बात करते हैं, हमारे यहाँ टन में होती है, तो 150 टन यानी 1500 क्विंटल। तो 1 एकड़ में अगर ये हुआ और 14% का शुगर का ये इनकम आया, तो किसान की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आप ज़रूर विचार करिए। आपके विचारार्थ में इसको रखना चाहता हूँ। एक अच्छी बात हुई कि इथेनॉल पर बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री को उसका उपयोग हुआ। मैं 2004 से जब कह रहा था, तो पहले तो लोग मुझे
मैं क्या इरविलेंट बोलता रहा हूँ, क्या ऐसे ही चलता था, पर आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लोग उसी समय स्वीकारते, उसको समय लगता है। तो अब इथेनॉल के बारे में 20% तक हम लगभग टारगेट पूरा कर चुके हैं। और अभी प्रहलाद जोशी का, और मैंने पेट्रोलियम मंत्री और सबको बोला, तब मुझे ध्यान में आया कि ब्राज़ील में 27% है, पर 27% के स्टैंडर्ड ही इंडिया में तैयार नहीं हुए। तो मैंने वो सेक्रेटरी हमारी मैडम थी उनको बताया, और वो प्रहलाद जोशी के अंडर आता है।